Hello students, so welcome to the solutions of JEE Main Test 78 uploaded on NTA Abhyas app today. Right, as compared to Test 77, it is a better paper. Though इसमें number of tough questions मुझे बहुत ज़्यादा tough question कोई भी इसमें नहीं लगा. But counting of easier questions is relatively low. तो maximum questions median and above medium category के ही हैं. तो overall level of paper I have regarded as medium and a score around 65 and more will be taken as good score in this paper. Right, so moving towards the discussion, the first question, SHM. The xt graph of a particle undergoing SHM is shown below. And acceleration हमें 4/3 seconds में निकालना, right? तो as per this graph, we can see that इसका time period जो है that is 8 seconds. Time 0 पे object 0 पे है मतलब mean position पे है और velocity positive है, slope से check कर सकते हैं. तो अपना standard equation यहाँ पे applicable है that x equals to a sin omega t जिसमें a is 1, the amplitude is 1. तो a sin omega t, omega is 2 pi by capital T. तो 2 pi by capital T means 2 pi by 8 into t. This is a sin omega t. Now for such cases, acceleration जो है that is minus omega square x. Now acceleration minus omega square में is 2 pi by 8 का square, ये omega square हो गया. और x जो है that is sin 2 pi by 8 into t. Time की जगह we have 4 by 3. तो ये time की जगह 4 by 3 रखा. This when squared, it becomes 4 pi square upon 64. And this is sin pi by 3, right? Sin 60 degree है तो ये root 3 by 2 अपन यहाँ place कर सकते हैं. तो उसके हिसाब से it comes out as minus root 3 pi square upon 32. तो this is given in option D, right? Fine. तो an easy question based on SHM. Next पे चलते हैं. In a one-dimensional collision between two identical particles A and B, B is stationary, A is given momentum P before impact. Now, during impact, B gives an impulse J to A. We know that impulse जो होता है किसी भी object पे, that is equals to change in its linear momentum, right? तो अगर अपन मान लीजिए B के लिए mention कर रहे हैं, तो B का initial velocity, initial momentum कुछ भी नहीं था. तो B के लिए तो is only final momentum. Let's say B का फाइनल मोमेंटम में लिख देता हूं PB डैश और इनिशियल सिर्फ PB है. सिमिलरली अगर फॉर A हम नोटिस करें तो A को वो जो इंपल्स लगा है वो उसके इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है. तो इस पे जो J आएगा दैट विल बी PA माइनस PA डैश. ठीक है, अगेन दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम फॉर A, तो विल बी PA माइनस PA डैश, बट ये इनिशियल के ऑपोजिट था इसलिए मैंने PA माइनस PA डैश लिखा है. Now we know that coefficient of restitution का जो equation होता है that is E times U1 minus U2 and that is equals to V2 minus V1, right? अब since दोनों objects का mass यहाँ identical है तो इस complete equation को अगर मैं M से multiply करता हूं तो सारे ये U जो हैं या V जो हैं वो सब momentum बन जाएंगे. तो it will be E times, अब ये सब initial velocities हैं तो it will become initial momentum, तो it is PA minus PB and that will be equals to PB dash minus PA dash, right? So accordingly आपका E का वैल्यू जो है वो इन सब का रेशियो बनेगा. तो आप देखो PB dash अपन सब्स्टिट्यूट करें तो इट इज J माइनस PA dash का वैल्यू यहां से पिक करो तो PA dash will be PA minus J, तो इट इज PA minus J that upon PA minus PB. तो PA minus PB में ये PA और इनिशियली PB 0 था. अच्छा, A का इनिशियल मोमेंटम वी आर गिवन इट इज P ओनली, राइट? तो ये मैं यहां P अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इट बिकम्स 2J minus P upon P. तो when evaluated this becomes 2J upon P minus 1. तो 2J upon P minus 1 के हिसाब से this is option A. So a good question but not that difficult, just application of impulse is equals to change in momentum, right? Next question. The bob of a simple pendulum of mass m, length L, displays 90 degree from the vertical and gently released. In order that the string may not break upon passing to the lowest point, its minimum strength must be, right? अब यहां से इस horizontal position से अगर इसको रिलीज करेंगे और यहां ये वर्टिकल पोजीशन पे कुछ स्पीड गेन करेगा और यहां ऑफ कोर्स इनिशियल स्पीड 0 था बिकॉज रिलीज किया था. तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर अपन इसका सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखें तो बिना t is towards the center. So it is t minus mg equals mv square by l. तो यहां सेंट्रीपिटल की इक्वेशन आई, दिस इज इक्वेशन 1. फिर इनिशियल से फाइनल के बीच अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो वी कैन राइट v square equals to 2gh. The h that is at descended is 2gl, that becomes your equation 2. ये v square अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो दिस t is t minus mg
और ये mv स्क्वायर बाय l में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये 2mg बच रहा है आफ्टर कैंसिलेशन, तो t का वैल्यू जो है दिस इज 3mg। तो सिंस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होता है, उसका टेंशन जो है वो 3mg है, तो इसका मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 3mg होना जरूरी है, अदरवाइज द स्ट्रिंग विल ब्रेक। सो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Right, next question, circuit solving. In the circuit shown, each resistor is of resistance capital R, equivalent हमें A और B के बीच निकालना है, right? तो ऐसे cases में जहां भी थोड़ा complication है, we usually try to redraw the network. तो if I mark these terminals as let's say M, N, and then this is P and this is O, और ये सारे resistances अपन देखें तो ये दोनों resistors जो हैं, this one and this one, they are in series. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो अपन यहीं पे रिप्लेस कर सकते हैं एज 2R, एंड दिस इज ऑल्सो कैन बी रिप्लेस्ड एज 2R. तो इफ वी रीड्रॉ दिस नेटवर्क, we can redraw it in this form that this M and O, they are the same point, this P and N, they are the same points. So this can be redrawn in this way, right? ये अपन ने A से टर्मिनल निकाला, ठीक है। देन वी हैव अ रेजिस्टर बिटवीन M एंड N, लेट्स से दिस पॉइंट इज M एंड दिस इज N। तो M और N के बीच में मुझे एक रेजिस्टर लगाना है, ये मैंने M और N के बीच में लगाया। Similarly, this resistor, this point of course we can again mark as M and this can be marked as N. तो ये वाला जो रेजिस्टर है ये भी N और N के बीच में ही है, तो ये मैंने M और N के बीच में एक और रेजिस्टर लगा दिया जो इसके पैरेलल में है। तो या तो आप इसको यहाँ पे O मार्क कर सकते हो और यहाँ पे आप उसको P मार्क कर सकते हैं, एक ही बात है। फर्दर ये N से B तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है, तो यहां अपन एक रेजिस्टेंस बना दें और इधर एक रेजिस्टेंस बना दें, राइट? दिस इज B। अब ये R एंड R मिलकर यहां पे 2R बन चुका था, दिस इज 2R एंड दिस इज R एंड दिस इज R, और ये दोनों भी रेजिस्टेंस R एंड R है। तो ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट कि ये जो बीच में रेजिस्टर R एंड R आ रहा है ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ दिस बिकम्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ये बन गया तो ये जो बीच वाला डायगोनल में हमने रेजिस्टेंस जो लगा रखा है दिस R/2, ये वाला पार्ट हम रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज R अपॉन R एंड 2R अपॉन 2R ये रेशियो मैच कर रहे हैं, इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब आपका R इक्विवेलेंट जो आएगा, इट कैन बी इवेल्युएटेड एज, जब आप बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दोगे तो दिस R विल बी इन सीरीज विथ 2R ऊपर वाले आर्म में, और फिर ये पैरेलल में होगा विथ डाउनवर्ड्स नीचे वाला R सीरीज 2R, ठीक है। तो उसके हिसाब से दिस इज 3R इन पैरेलल विथ 3R, तो दिस 3R/2, द रिजल्ट इज 1.5R। तो यहां से आपका आंसर जो है वो 1.5R आ रहा है। जस्ट नेटवर्क को हमने रीड्रॉ किया और रीड्रॉ करते ही वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई हो गया। सो एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ दिस वंस अ गुड क्वेश्चन हियर। द सर्किट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 R2, और दो वोल्ट मीटर्स हमने उनके अक्रॉस कनेक्ट कर रखे हैं, आइडियल वोल्ट मीटर्स मानने होंगे, गिवन है। और डेल्टा V जो है दैट्स -E.dl फ्रॉम A to B, दिस इज नथिंग अनयूजुअल। डेल्टा V इलेक्ट्रिक फील्ड से इसी वे में कनेक्टेड होता है। नाउ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये B0t टाइम वेरिंग हमने यहां पे इस रीजन में अप्लाई किया है। तो पहले अगर अपन उस रीजन, छोटे से उस रीजन में से फ्लक्स निकालें तो वी नो दैट फ्लक्स इज B इंटू A, तो B तो हो जाएगा B0 इंटू T, और उस पोर्शन का एरिया जो है दैट इज पाई A स्क्वायर। तो फ्लक्स इज टाइम वेरिंग। अब EMF का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज d phi अपॉन dt। तो EMF अगर निकालेंगे d phi by dt के हिसाब से तो इट विल बी पाई A स्क्वायर इंटू B0, ये आपका EMF आ गया। नाउ करंट अगर अपन कैलकुलेट करें, ये V2 और V1 तो आइडियल वोल्ट मीटर्स हैं, तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 ही रहेगा। तो करंट जो होगा दैट विल बी E अपॉन R इक्विवेलेंट, तो पाई A स्क्वायर B0 अपॉन R इक्विवेलेंट इट्स R1 प्लस R2, ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। नाउ सिंस द क्वेश्चन सेज वी नीड टू फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2, आप देखिए सिंस इनवर्ड क्रॉस लगा हुआ है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगी तो उसको अपोज करने के हिसाब से इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो पहला एक कंक्लूजन अपन ये निकाला कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब R2 में करंट जो है वो यहां से इधर ट्रैवल कर रहा है, और इधर अपन कनेक्शन देखें तो ये A है और ये B है। इट मींस पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। तो हमें जब डेल्टा V कैलकुलेट करना है, हमारे इस डेल्टा V के एक्सप्रेशन से लिमिट से हम देख सकते हैं कि हमें A से B तक जाना है।
तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा वो होगा वीबी माइनस वी ए, एंड सिंस ए हायर पोटेंशियल पे है तो दिस टर्म इट शुड बी नेगेटिव। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 आएगा दैट इज माइनस IR2, नेगेटिव आना चाहिए बिकॉज ए हायर पोटेंशियल पे और आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो चेंज इज नेगेटिव। तो माइनस IR2 में आई तो हो गया पाई ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन R1 प्लस R2 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय R2। तो ये अपन ऑप्शन सर्च करें तो दिस इज पाई ए स्क्वायर बी नॉट R2 अपॉन R, ये ऑप्शन बी में हमें गिवन है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ, इसको अपन टफ नहीं बोल सकते हैं, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका EMI का भी आ गया और बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mass of a planet and its diameter are 3 times those of Earth, acceleration due to gravity देखना है फाइनली। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, the acceleration due to gravity you know it's gm by r square on the surface। तो अब जो प्लैनेट है उसका अगर g डैश देखें तो मास तो 3 टाइम्स हो गया और रेडियस जो है वो भी 3 टाइम्स करना बिकॉज डायमीटर भी 3 टाइम्स है, तो ये वैल्यू आपकी g नॉट बाई 3 आ रही है। अब g नॉट 9.8 है, अपॉन 3 करूंगा तो ये 3.3 अप्रोक्सीमेट आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें बैठ रहा है। तो खैर इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, a car starting from rest accelerates at the rate f through a distance s, then continues at a constant speed for time t, decelerates total distance। right, अब this is a routine language जिसमें you are well aware कि ऐसी लैंग्वेज मिलते ही you need to plot a graph for this situation। right, तो अगर मैं इस सिचुएशन का vt ग्राफ बनाता हूं तो आप देखिए इनिशियली वो f रेट से एक्सेलरेट किया बट रिटार्ड वो आधी रेट से किया है। अगर वो आधी रेट से रिटार्ड करेगा तो उसको स्टॉप होने में डबल टाइम लग जाएगा बिकॉज उसका रेट ऑफ रिटार्डेशन आधा कर दिया है। तो ये सिनेरियो है इस तरह से, ठीक है। इसको अपन इस वे में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इट कैन बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म, जैसे यहां से ये एक्सेलरेटिंग फेज, फिर कांस्टेंट स्पीड वाला फेज, और रिटार्डिंग फेज में टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, डबल टाइम लगा। तो अब अगर यहां पे अपन कुछ टाइम और ये वैल्यूज मार्क कर लें तो लेट्स से दिस टाइम इफ इट इज t1, तो ये वाला जो टाइम होना चाहिए दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ t1। अच्छा, यहां जो स्पीड है दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, लेट्स इट इज vm। नाउ डिस्टेंसेस जो अपन निकालते हैं vt ग्राफ से वो एरिया से निकलते हैं, तो इसका एरिया इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, और इस वाले का जो एरिया होगा दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें हाइट दोनों में सेम है बट इसका बेस डबल हो गया है। तो अगर ये वाला एरिया, ये वाला डिस्टेंस s है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 2s होना चाहिए बिकॉज इसमें बेस डबल हो गया। अच्छा, टोटल डिस्टेंस 15s है और 3s ये है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 12s है। नाउ पहले इस ट्रायंगल से अगर ऑब्जर्व करें तो जो s डिस्टेंस है, दिस फर्स्ट ट्रायंगल, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपका s का वैल्यू है। फिर ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला सेक्शन है, इसका अगर अपन एरिया देखें तो इसका डिस्टेंस कितना है 12s, और इसका एरिया लिख सकते हैं अपन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है vm और ब्रेड्थ है t, ये हमें t गिवन है ऑलरेडी कि कांस्टेंट स्पीड से ये t टाइम के लिए चला है। तो अब अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां s का वैल्यू प्लेस कर दूं तो दिस इज हाफ t1 इंटू vm एंड दैट इज इक्वल्स टू vm इंटू t। तो यहां से मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज t1 बाय 6, करेक्ट है ना। t जो वैल्यू आ रहा है दिस इज t1 बाय 6। तो नाउ अकॉर्डिंगली अगर हमें ये s कैलकुलेट करना है तो आप देखो जो s है ये f रेट से चला था, s डिस्टेंस कवर किया था, तो इस कैन बी रिटन एज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज हाफ a t स्क्वायर t1 स्क्वायर। t1 को यहां पे मैं प्लेस कर दूं, आप देखें दिस इज 12s, s को मैंने यहां पे हाफ t1 इंटू vm रखा, तो t1 जो यहां पे t का वैल्यू जो आ रहा है वो, सॉरी यहां पे इट शुड बी t1 इक्वल्स टू t बाय 6। तो t1 जो है दैट इज t बाय 6, तो यहां पे t1 को अगर t बाय 6 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो दिस इज ft स्क्वायर अपॉन 36 टू 72, तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो ओवरऑल एन इजी क्वेश्चन जो प्रोफाइल काफी रूटीन है, आप काफी बार देख चुके हैं। Right, next question. A particle of mass m moving with speed u strikes a smooth horizontal surface at an angle 45. The particle rebounds at an angle phi with speed u coefficient 1 by right। तो routine question है आपके collision in 2D का। तो if I consider this angle as alpha और ये वाला angle जो है this is 45 डिग्री, तो collision in 2D में आपका एक standard result ये होता है this tan alpha is equals to this tan theta which is 45 here, this is tan theta upon phi, upon e।
अच्छा, अल्फा को मैं 90 माइनस 5 लिख सकता हूं, तो यहां अल्फा को 90 माइनस 5 रखूंगा तो विल बी cot 5 एंड दैट विल बी tan 45 विच इज 1 एंड e इज 1 बाय रूट 3। तो ये आपका cot 5 का वैल्यू रूट 3 आ गया, विच मींस 5 जो होगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन 2D collisions. Next, an ideal gas expands isothermally from volume V1 to V2 and then compressed to original volume V1 adiabatically. द फाइनल प्रेशर P1 P3 वगैरह है और वर्क डन कंपेयर करना है। फाइन, तो अगेन इट्स यूजुअल प्रोफाइल अगेन जो काफी सारे एग्जाम्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछा जा चुका है। तो इफ वी ड्रॉ अ पीवी ग्राफ फॉर सच केस, मान लो यहां से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो पहले एक्सपैंड किया आइसोथर्मली तो हाइपरबोलिक बनाया, और उसके बाद एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। तो वी नो दैट एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा वो आइसोथर्म से रिलेटिवली स्टीप होना चाहिए। स्टीप होगा मतलब यहां से ऊपर की तरफ से बनाया जाएगा, तो यहां से ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा और इट हैज टू एंड ऑन द सेम वॉल्यूम, राइट। यहां ये V1 था और इसको एक्सपैंड करके V2 पे लेके गए और वापस से कंप्रेस करके V1 पे ले गए। तो इनिशियल प्रेशर इट सेज P1 है, फाइनल प्रेशर इट सेज P3 है। तो देन हमें अब रिजल्ट बताना है। तो यू कैन सी दैट ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि आपका P3 जो है दैट इज ग्रेटर देन P1। एक चीज तो ये दिख रही है। सेकेंडली, एडियाबैटिक वाला जो है उसमें वर्क डन मैग्नीट्यूड ज्यादा है बिकॉज एरिया ऑफ द ग्राफ ज्यादा होगा। बट सिंस एडियाबैटिक जो है ये वाला, इसके अंदर कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा और ये वाले फेज में पॉजिटिव वर्क है, तो ग्रेटर अमाउंट नेगेटिव वर्क का है, तो आपका नेट वर्क डन नेगेटिव आना है और P3 ग्रेटर देन P1 आना है। तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो again, graphical analysis of thermodynamics, a good profile, important profile, but again an easy question. 1 mole of an ideal gas as taken from state A to B by 3 different processes. So again thermodynamics, 3 अलग अलग पाथ बता दिए और हीट अब्सॉर्ब्ड की बात करनी है। फाइन, देखिए सिंस ये A से B जाना है वाया 3 डिफरेंट पाथ, तो वी नो दैट डेल्टा यू जो होगा वो तो सभी पाथ के लिए सेम है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो कंपैरिजन में बचा ही नहीं बिकॉज सबके लिए सेम है, इसका मतलब W ही कंपैरिजन का पॉइंट है। तो अगर मैं वर्क डन ए डी बी का देख रहा हूं तो कैन सी दैट एडीबी इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो एडीबी का वर्क डन 0 है। फिर ए सी बी वाले पाथ से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्लॉकवाइज वे में जा रहा है, यहां पे ग्रेटर वर्क इधर स्मॉलर है, तो क्लॉकवाइज वे में जा रहा है, तो ए सी बी का वर्क पॉजिटिव आएगा और ए ई बी का जो वर्क होगा सिंस वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव आएगा। अब जब यहां पे ये चीजें सब्स्टिट्यूट होंगी तो कैन सी दैट डेल्टा यू में जब पॉजिटिव वर्क ए सी बी वाला ऐड होगा तो दैट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट हीट वैल्यू। तो हीट अब्सॉर्ब जो है वो आपका ए सी बी का ग्रेटेस्ट है एंड ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन दिस थर्ड एंड फर्स्ट, तो उसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो दिस क्यू अब्सॉर्ब इज लेस इन सी देन इन बी। फाइन, तो डी ऑप्शन ये सही है कि सी में यहां पे हीट अब्सॉर्ब कम है और यहां पे ज्यादा है। वही अपन कहना चाह रहे हैं कि ए सी बी में वर्क पॉजिटिव है, डेल्टा यू सेम है, तो क्यू ए सी बी में जो है वो ग्रेटेस्ट निकल के आएगा। तो अगेन एनालिटिकल स्किल्स यहां पे आपके चेक होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी करंट्स I1 I2 such that I1 is greater than I2 when the currents are in the same direction, the magnetic field at a point midway, right। तो अगर मैं ये दो पैरेलल वायर्स बना लूं एंड लेट्स से इनका मिडवे कोई पॉइंट जो ले रहा हूं वो दोनों वायर्स से लेट्स से डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहां पे अगर I1 करंट है, ये I2 करंट है। नाउ एज पर योर राइट हैंड पाम रूल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिडवे जनरेट करेंगे दैट विल बी ऑपोजिट। तो पहले केस में जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा that will be mu naught I upon 2 pi d। अब ये I एक की वजह से फील्ड mu naught I1 upon 2 pi d है, दूसरे की वजह से mu naught I2 upon 2 pi d और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अंदर ब्रैकेट में we will be having I1 minus I2 and this value is given as 6 into 10 to the power minus 6। सिमिलरली दूसरे केस में जब एक को रिवर्स कर दिया, I2 को रिवर्स कर दिया, तो अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट इज mu naught upon 2 pi d I1 plus I2 and this magnetic field is 3 into 10 to the power minus 5। तो इन्हें हम डिवाइड अगर कर लें तो we have I1 minus I2
upon I1 plus I2, that comes out as 2 by 10, 1 by 5. So accordingly, this is 5I1 minus 5I2, and this is I1 plus I2. So accordingly, this is 4I1 and that is equals to 6I2. तो आपका I1 upon I2 जो आ रहा है, that is 3 by 2. तो ये 3 by 2 ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है. तो अगेन एन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं. तो I1 by I2 आपका 3 by 2 आ रहा है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. राइट, R1 R2 C1 C2 गिवन टाइम कांस्टेंट्स. राइट, तो RC सर्किट हमें देखना है. तो वी नो दैट आपका टाइम कांस्टेंट जो होता है दैट इज R इंटू सी. राइट, तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें अपन देखें दोनों R जो है ये पैरेलल है. अब R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज 2 by 3. और ये C1 C2 सीरीज में है, तो सीरीज इक्विवेलेंट भी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जाता है. तो दिस इज 8 अपॉन 6, इट इज 4 अपॉन 3. तो दिस कम्स आउट एज 8 by 9. तो फर्स्ट के केस में टाइम कांस्टेंट जो है वो 8 by 9 आ रहा है, जो आपको एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट वाले जो है वो एक ही ऑप्शन में 8 by 9 दे रखा है. तो खैर डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो सेकंड वाले का भी एक बार सेफ्टी वे चेक कर लो. तो ये R1 प्लस R2 आपका R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 के हिसाब से 3 आएगा. और C1 एंड C2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 जो है वो 6 बन जाएगा. तो दिस वैल्यू इट कम्स आउट एज 18. अपन सेकंड देखें तो ये 18 दे रखा है, तो ये कंफर्म हो गया कि आपको ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट के फॉर्मूले पर. नेक्स्ट, वाटर कमिंग आउट with velocity v drops onto a mesh through which 50% of water passes, 25% loses entire momentum and 25% bounces back. The pressure on the mesh is right. Good question, good language. तो अपन देखें ऐसे केस में जो मास फ्लो रेट होता है dm by dt, that mass flow rate is rho av, right? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट av होता है एंड मास फ्लो रेट इज rho av. अब जितना पानी यहां से पास हो रहा है पर सेकेंड, उसमें से 50% तो डायरेक्टली पास हो गया, तो उसने तो कोई फोर्स नहीं लगाई. बट उसमें से 25% मतलब 1/4 अपना सारा मोमेंटम लूज कर दिया. तो 1/4 अगर सारा मोमेंटम लूज कर दिया, तो एक फोर्स में F1 उसकी वजह से निकाल रहा हूं. तो आप देखो वो कितना होगा, 1/4 रो ए वी, ये मास है रो ए वी, उसका 1/4, और वो कितनी स्पीड से चल रहा था v, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0. तो इतना मोमेंटम उसने लूज किया, पूरा का पूरा लूज किया, तो इतना फोर्स एक्सर्ट किया, दैट इज dp by dt के हिसाब से. सिमिलरली इट सेज 25% बाउंसेस बैक. देखिए अगर कोई चीज mv मोमेंटम लेकर आया और सेम स्पीड से बाउंस बैक किया, तो -mv मोमेंटम लेकर जाता है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जाता है. तो यहां पे अब सेकंड ये बाउंस बैक कारण जो फोर्स लगेगा उसमें मास कितना है, इट इज 1/4 ऑफ रो एवी. टोटल का 1/4 बाउंस बैक किया है, 1/4 कंप्लीटली अब्सॉर्ब हुआ एक तरह से. ये भी v स्पीड से चल रहा था, बट इसके अंदर बाउंस बैक हुआ है, तो ये 2 का फैक्टर आ जाएगा. तो अब अपन नेट फोर्स अगर निकालें, तो इन्हें ऐड करने के हिसाब से वी हैव रो ए वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो ए वी स्क्वायर बाय 4 प्लस रो ए वी स्क्वायर बाय 2. तो दिस कम्स आउट एज 3/4 रो ए वी स्क्वायर. तो फोर्स आ गया. अब हमें प्रेशर एक्सर्टेड निकालना, तो दैट्स फोर्स अपॉन एरिया, so that's 3/4 into rho v square. तो ये आपका प्रेशर एक्सर्टेड यहां से कैलकुलेट हुआ है, इज गिवन इन ऑप्शन डी. सो गुड क्वेश्चन, बट अगेन एक ऑब्जर्व्ड प्रोफाइल है, कोई बहुत स्पेशल नया क्वेश्चन नहीं है, बट ओवरऑल अ गुड क्वेश्चन हियर. Assume that nuclear binding energy per nucleon, right? Binding energy per nucleon का हमें ग्राफ गिवन है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें फिजन प्रोसेस अगर है, तो जो मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई टूट कर बन रहे हैं, वो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ में ऊपर एग्जिस्ट करने चाहिए, ग्राफ में ऊपर होने चाहिए, ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनका ज्यादा हो. ऐसी अगर फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूज होने से जो बने वो भी उनका एग्जिस्टेंस ग्राफ में ऊपर होना चाहिए, ताकि बाइंडिंग एनर्जी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, एनर्जी रिलीज हो सके, तो वो एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा. तो वो अगर आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करोगे, तो यू विल सी दैट ऑप्शन डी में वो बात फिट बैठेगी, दैट फिजन ऑफ अ न्यूक्लियाई लाइंग इन द मास रेंज 200 to 260. इस मास रेंज में अगर कोई न्यूक्लियाई टूटता है, तो मान लीजिए 220 का न्यूक्लियस टूटा
इंटू 110 एंड 110। तो ऐसे केस में 110 और 110 ग्राफ में इधर कहीं लाया करेगा, विच इज डेफिनेटली हैविंग अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी एंड द रिएक्शन इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे सारे ऑप्शंस में आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन ही आपका सबसे फीजिबल बैठेगा। राइट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। An infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius given, outer radius given और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज रीजन में और मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करना है। तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये रिजल्ट याद ही रहता है, ग्राफ ही याद रहता है। मैं एक बार ये पॉइंट रिकॉल करा देता हूं। तो ये r/2 है और ये r है, यहां हॉलो है और इस जगह पे करंट है। तो वी नो दैट फॉर स्मॉल r लेस देन r/2 उसमें I एनक्लोज्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R मतलब सिलेंडर के बाहर आपका I एनक्लोज्ड कंप्लीट I है, तो B का वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के हिसाब से होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो पहले तो ग्राफ 0 में होगा, बाहर अपन देखें तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोलिक होगा। बट ये जो R/2 से लेकर R के बीच में ग्राफ आना है उसका सब डिपेंडेंसी I एनक्लोज्ड पे है। तो अपन अगर यहां करंट डेंसिटी देखें, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट पर यूनिट एरिया होगा I अपॉन पाई, इट इज R स्क्वायर माइनस R/2 का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज करंट जो है वो R/2 से R के बीच में ही है, R/2 के अंदर करंट नहीं है। तो दिस इज द करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। और हमारा जो डिजायर्ड एरिया होगा, मान लीजिए मुझे स्मॉल r पे जाके यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस गैप के अंदर अंदर जो I एनक्लोज्ड है, तो इसका एरिया मैं यहां पे लिखो इज पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस R/2 का स्क्वायर। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी R का यही वाला प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। तो वो पॉइंट हम अपने ग्राफ में सर्च करें तो देखिए ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया, बिकॉज ये कह रहा है बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, यहां पे वो नॉन जीरो कह रहा है, रिजेक्ट हो गया। तो हमें R/2 के अंदर अंदर जीरो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो 3 ग्राफ में दिख रही है। R के बाहर हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए जो बाकी 3 ऑप्शन में दिख रही है। बट बीच में हम देखें तो देयर इज नो अब्रप्ट चेंज। आप स्मॉल r की वैल्यू प्लेस करके देखोगे है ना, कोई अब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है, एक प्रॉपर कंटिन्यूअस ग्राफ मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजिंग। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका उस फंक्शन, उस इक्वेशन में फिट बैठेगा। आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके, जैसे यहां आप स्मॉल r की जगह जब वैल्यू प्लेस करोगे R/2, तो ये I एनक्लोज्ड R/2 पे आप देखो आपको 0 मिल रहा है। मतलब ग्राफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 से इनिशिएट होना चाहिए और बढ़ते हुए आगे जाना चाहिए। तो ये तीनों फील्ड फंक्शंस के हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। Light of two different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2.5 respectively successively illuminate a metallic surface whose work function is given. Right, तो अपन k1 upon k2 वैल्यू देखें तो इट विल बी E1 minus 5 and divided by this E2 minus 5. तो E1 minus 5, 1 minus 0.5 is 0.5 and E2 minus 5 कर रहा हूं तो 2.5 minus 0.5 is 2. तो दिस कम्स आउट एज 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर 1/4 है तो स्पीड्स का रेशियो जो होगा हाफ mv स्क्वायर है, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये 1/2 होना चाहिए। तो आपका रेशियो 1/2 इट इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो ये तो खैर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट में इट सेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ अ लेक ऑफ डेप्थ h is P0. If the pressure at half the depth of the lake is equal to 2/3 of the pressure at the bottom, then depth h of the lake is. Right, तो as per this equation आप देखो जो let's say half the depth पे अगर अपन लिखें तो प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस रो जी h/2। और वो जो प्रेशर है वो 2/3 है, 2/3 किसका, प्रेशर एट द बॉटम, बॉटम पे कितना होगा, इस P0 प्लस रो जी एच। तो उसके हिसाब से आप देखो दिस इज P0 माइनस 2 P0/3, तो ये P0/3 बच रहा है एंड दिस इज 2 रो जी h/3 माइनस रो जी h/2। तो आपका ये वैल्यू आएगा P0/3 एंड दिस इज आई गेस रो जी h/6। राइट, तो यहां से h की वैल्यू जो आएगी दैट इज 2 P0 अपॉन रो जी। अब ये अपन स्टैंडर्ड डेटा यहां पे प्लेस कर दें तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 into 10⁵ पास्कल, रो का वैल्यू इज 10⁵, वाटर का डेंसिटी G ये 10 प्लेस किया, तो आपका H का वैल्यू जो है दैट इज 20 मीटर्स।
टेक्निकली ये डेटा जो है वो मेंशन्ड होना चाहिए बिकॉज वर्किंग कंडीशन के हिसाब से बदलता है, बट सिंस ये मेंशन नहीं था तो हमने स्टैंडर्ड डेटा लेकर एच का वैल्यू 20 निकाल दिया। तो फ्लूइड्स का प्रेशर वेरिएशन पर एक इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, इफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x distance in time t2 in a certain medium। देखो जिस मीडियम में वो 10x डिस्टेंस चल रहा है t2 टाइम में, तो वहां स्पीड कितना हो जाएगा? दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 10x by t2। अब वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है c अपॉन v। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। तो एयर में उसने t1 टाइम में x डिस्टेंस चला है, तो एयर में स्पीड कितनी हो गई? x by t1, और v की वैल्यू हमने निकाली है 10x by t2। तो उसके हिसाब से दिस रिजल्ट इज t2 अपॉन 10t1। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, राइट। नाउ इट सेज क्रिटिकल एंगल निकालना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो क्रिटिकल एंगल के लिए अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन थीटा सी इज 1/n जब एक मीडियम एयर हो। तो ये 1/n यहां प्लेस करूंगा तो दैट विल बी 10t1 अपॉन t2। तो आपका थीटा सी इज साइन इनवर्स tan t1 अपॉन t2। तो 10t1 अपॉन t2 साइन इनवर्स, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? राइट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है बिल्कुल, बिकॉज कंडक्टर्स से ऑपोजिट बिहेवियर शो करते हैं ये। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट से करेंगे तो ऑफकोर्स पी टाइप बनेगा, पेंटावेलेंट से करते तो एन टाइप बनेगा, ये भी सही है। द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका ऑप्शन सी आंसर बैठ रहा है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत सारा लैंग्वेज इसमें गिवन है। द पॉइंट इज ये हमें ई और बी के डायमेंशंस को रिलेट करने को कह रहा है। अब ये अपन जानते हैं कि ई बाय बी का जो रेशियो होता है, दैट ई बाय बी का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, अदरवाइज स्पीड के इक्वल होता है रेशियो। तो ई का जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू बी का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का डायमेंशन। स्पीड का डायमेंशन इज एल टी माइनस वन। बस सीधा हमें यही ऑप्शन ढूंढना है कि ई का डायमेंशन इज बी इंटू एल टी माइनस वन, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। तो अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो सीधा आप ई बाय बी इक्वल्स टू सी वाले रिजल्ट से कैलकुलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम अ ट्राइंगुलर लैमिना ऑफ साइड ए मास m, स्मॉल ट्राइंगुलर लैमिना मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, राइट, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है, और वो ट्राइंगुलर लैमिना हमें गिवन है, उसमें से कुछ पोर्शन रिमूव किया हुआ है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखिए अब ऐसे केस में, ये खैर क्वेश्चन ऑलरेडी आपका जेई मेन टेस्ट पहले भी आ चुका है। तो अगर अपन प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से चलें तो कंप्लीट ट्राइंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सम कांस्टेंट टाइम्स एम ए स्क्वायर। वी नो दैट कुछ 5 ma² by 3 ऐसा कुछ भी आ सकता है, कोई कांस्टेंट टाइम्स ma² आएगा। नाउ जो कटआउट पार्ट है, उस कटआउट पार्ट में आप देखें, सिंस चार इक्वल ट्राइंगल, चार आइडेंटिकल ट्राइंगल है, तो ये कटआउट वाले का जो मास होना चाहिए वो m/4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मास जो आएगा, k वाला फैक्टर तो ठीक है, मास की जगह इट विल बी m/4, और साइड लेंथ जो है उसका साइड लेंथ इट विल बी a/2। ऑफ कोर्स वो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके बनाया है, तो ये जो वैल्यू आएगा दिस इज 4 and 4 16, तो ये आपका I0 अपॉन 16 आ रहा है। तो आपने क्या किया, आपने I0 में से I कटआउट हटा दिया, तो आपका जो बचा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज दिस I0 माइनस I0 by 16, तो दिस इज 15 I0 by 16। तो क्वेश्चन ने 15 और 16 को ये P और Q मार्क किया है, तो P प्लस Q मतलब 15 प्लस 16, आपका ये आंसर 31 इस केस में आ जाएगा। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन जो पहले भी जेईई मेन टेस्ट में, एनटीए टेस्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T, एवरेज फोर्स दैट मॉलिक्यूल अप्लाइज ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन T to the power Q। अगेन ये मेरे ख्याल से जेईई मेन ऑनलाइन का ही कुछ क्वेश्चन है, पहले पूछ चुके हैं पिछले सालों में। राइट, देखिए इसमें वी नो दैट प्रेशर जो होता है दैट इज 1/3, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होगा, 1/3 Nm Vrms²। Now your Vrms is directly proportional to root T। तो यहां अगर अपन N और M तो कांस्टेंट्स हैं, हाफ कांस्टेंट है, Vrms का प्रोपोर्शनलिटी देखें तो प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, बिकॉज स्क्वायर हुआ है Vrms का। नाउ फोर्स जो है ऑफ कोर्स दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, तो आपका फोर्स जो होगा वो भी T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, T to the power 1 के।
तो यहां ये टी टू द पावर क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू का वैल्यू यहां पे 1 होना चाहिए। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ केटीजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the YDAC shown below, two slits are covered with thin sheets having thickness given, refractive indices given और shifting का क्वेश्चन दिया है YDAC में। तो आप देखो कोई भी अगर पॉइंट P मैं यहां कंसिडर करता हूं, तो जो फर्स्ट वाला जो S1 से रे निकल रहा है ना, आप देखिए उसका डिस्टेंस, उसका ओवरऑल पाथ क्या होगा, इट विल बी S1P माइनस स्लैब का थिकनेस T प्लस उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज 2 म्यू T। सिमिलरली L2 सेकंड वाले से जो लाइट ट्रैवल करेगी वो कितना ट्रैवल करेगी, वो S2P ट्रैवल कर रही है, माइनस स्लैब के अंदर कितना ट्रैवल किया है 2T, और उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना है, वो 2 म्यू T है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस देखूं, तो पाथ डिफरेंस आप जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे ना, L1 माइनस L2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो एडिशनल पाथ डिफरेंस, देखो यूजुअल पाथ डिफरेंस तो S1P माइनस S2P होता था, जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आया, देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए S1P माइनस S2P 0 हो जाना चाहिए था, बट जो एडिशनल पाथ डिफरेंस इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के आएगा ना, वो T के बराबर आ रहा है। नाउ वी नो दैट ये जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज D sin थीटा। तो यहां से D sin थीटा को अपन Y बाय कैपिटल D लिख सकेंगे, दैट इज इक्वल टू T। तो यहां से Y की वैल्यू निकालें तो ये T कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ रहा है। तो T इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 mm है, तो माइनस 5 मीटर्स हो जाएगा, राइट। फर्दर अपन देखें तो दिस इज D, अच्छा इसमें T तो प्लेस कर दिया मैंने, D इज 1 मीटर एंड स्मॉल d जो गिवन है दैट स्मॉल d इज 1 mm, तो दिस इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये जो y आ रहा है आपका, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स। हमें सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो आपका n जो आएगा दैट इज स्ट्रेट अवे 2, है ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये शिफ्ट जो है, जो y हमने निकाला है वही शिफ्ट है यहाँ पे, तो वो सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगा अब ये 2 इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर पे आ रहा है, तो यहाँ n का वैल्यू 2 हमने निकाल लिया। तो ये अगेन स्टैंडर्ड थ्योरी का ही पार्ट होता है कि स्लिट्स प्लेस करने से, स्लिट्स के सामने स्लैब प्लेस करने से शिफ्ट कितना आता है, उसका स्टैंडर्ड थ्योरी यूज करके हमने सॉल्व किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन एंड टेंशन निकालना है, फाइन, ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे वी नो दैट स्पीड ऑफ वेव होता है ओमेगा बाय के, तो ओमेगा तो टी का कोएफिशिएंट है, तो 1 अपॉन 0.04, एंड के जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो 1 अपॉन 0.5, तो उसके हिसाब से दिस इज 0.5 अपॉन 0.04, 50 बाय 4, दिस इज 12.5, तो ये v आ गया। नाउ वी नो दैट v जो होता है दैट इज t बाय म्यू अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से टेंशन की वैल्यू जो आएगी दैट इज म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो म्यू तो दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट्स में 0.04, और v स्क्वायर आपका हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर। व्हेन दिस इज इवैल्यूएटेड दिस टेंशन इट कम्स आउट एज 6.25 न्यूटन, ठीक है। तो 6.25 न्यूटन आपका आंसर टेंशन का इसमें आ रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट, और वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेव्स, राइट। देन द लास्ट प्रॉब्लम, कंसिडर एन एलिप्टिकल शेप्ड रेल PQ इन द वर्टिकल प्लेन, और ये कुछ डिस्टेंसेस हमें गिवन है। फोर्स जो है वो पैरेलल टू लाइन PQ लगाया गया है, PQ के अलोंग फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट ये ऐसे घुमा के ले जा रहे हैं, और राइट, एंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगेन कि W एक्सटर्नल जो होता है, सिंस एक्सटर्नल एजेंसी है यहाँ पे, तो W एक्सटर्नल इज डेल्टा U प्लस डेल्टा के। अब जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो हमेशा PQ के अलोंग लगाया है, तो फोर्स तो कितना है 18, और डिस्प्लेसमेंट फिर मैं PQ ही ले लूंगा, बिकॉज P से Q जाने में डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग PQ। तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग PQ पाइथागोरस से देखें 3/4, तो ये हो जाएगी 5। तो ये वर्क डन तो हो गया सीधा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ डेल्टा U, सिंस ये P से Q असेंड किया है, कितना असेंड किया है, 4 मीटर ऊपर चला गया है, तो डेल्टा U हो जाएगा प्लस mgh। तो m इज 1, g इज 10 एंड h इज 4, प्लस डेल्टा के, ये हमें निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो आपका डेल्टा के यहां से जो आ रहा है दिस इज 90 माइनस 40, तो ये 50 जूल्स आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज 50, दैट इज 5 इंटू 10। तो क्वेश्चन से अपन ये मैच कराएं तो ये आपका n का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो दिस इज द रिजल्ट। तो अगेन जैसा मैंने कहा था, आपने सोल्यूशन में देखा होगा, देयर वाज नो टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं था, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत डायरेक्ट या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूरे पेपर में बहुत ज्यादा हो। मीडियम से थोड़ा ऊपर क्वेश्चन हमें काउंट यहाँ पे ज्यादा मिला। सो गुड पेपर फॉर लर्निंग,
right? So students, you keep working hard, you stay motivated, and as I always say, you can and you will. Thank you.